ঘৰখনত নিজৰ চুবুৰীটোত আপোনালোকে এজন আদৰ্শ ব্যক্তি হিচাপে আপোনালোকে থিয় হওক আৰু আপোনালোকে অতি ভদ্ৰভাৱে অতি অমায়িকভাৱে আপোনালোকে নিজৰ অঞ্চলটোত এই যি আমাৰ সোশিয়াল ডিস্টেন্সিঙৰ কথা আছে সামাজিকভাৱে আমি দূৰত্ব বা আমি ফিজিক্যালি আমি এটা ব্যৱধান মেইনটেইন কৰিব লাগে দূৰত্ব ৰাখিব লাগে বা আমি চাফ চিকুণকৈ থাকিব লাগে এই গোটেই কথাবিলাক আমি মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিব লাগিব আজি আপোনালোকে বহুতে গম পাইছে যে বিশ্বৰ কিছু দেশ ইতিমধ্যে আগবাঢ়ি গৈছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত পুনৰ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছে জাপান বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন দেশে পুনৰ তেওঁলোকে নিজৰ কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে এইটো এই কাৰণেই সম্ভৱ হৈছে যে তেখেতসকলৰ যিটো স্বভাৱ তেখেতসকলৰ যিটো হেবিট সেই হেবিটটো তেওঁলোকৰ আগৰ পৰা ইমান চাফ চিকুণ তেওঁলোকে আগৰ পৰা ইমান সঠিকভাৱে চলে নিয়মৰ মাজত চলে এটা শিষ্টাচাৰৰ মাজত চলে যে তেওঁলোকক এতিয়াও কৰোনা ভাইৰাছে আগ্ৰাসনত তেওঁলোকে বাধা দিব পাৰিছে গতিকে মই আশা ৰাখো যে আমি অসমীয়া হিচাপে আমি অসম হিচাপে আমি অসমৰ ৰাইজে আমি প্ৰত্যেকেই আমি দেখুৱাব লাগিব এটা এক্সাম্পল কৰি দেখুৱা আৰু এইটোৱে এটা গোটেই পৃথিৱীত আমি কৰি দেখাব পৰা এখন প্লেটফৰ্মত আমি বৰ্তমান আহি থিয় হৈছো গোটেই পৃথিৱী এইজনে সিজনৰ পৰা ভাল কথাবিলাক শিকিছে গতিকে আমি যদি কিছু আমাৰ প্ৰতিৰোধী বন্ধুসকল যদি আমাৰ পৃথিৱীৰ কাৰণে আমি আদৰ্শ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰো তেখেতসকলৰ লগত যদি আমিও থিয় হ'ব পাৰো সমানে সমানে গতিকে মই ভাবো যে প্ৰতিৰোধী বন্ধু নৈতিকভাৱে এই দায়িত্বখিনি সকলোৱে পালন কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰত্যেকেই নিজৰ চুবুৰীটোত নিজৰ ঘৰখনত নিজৰ গাঁওখনত নিজৰ ৱাৰ্ডত তেওঁলোকে এটা হেতু হিচাপে যে আমাৰ চৰকাৰ আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ মাজত তেওঁলোকে এখন হেতু হিচাপে কাৰোবাৰ ঘৰত যদি কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট আছে কাৰোবাৰ ঘৰত যদি অন্য সমস্যা হৈছে এই সমস্যাসমূহ টেলিফোনেৰে তেওঁলোকে যাতে আমাৰ জিলা প্ৰশাসনক জনাব পাৰে বা আমাৰ যি হেল্থ সাৰ্ভিস আছে কমন সাৰ্ভিস সেন্টাৰ যিবিলাক অৰুণোদয় সেন্টাৰ আছে সেই CSC বিলাকত আমি টেলিমেডিচিনৰ ব্যৱস্থা কৰি আছো সেই টেলিমেডিচিনৰ লগত তেওঁলোকে দি ডক্টৰসকলক অনলাইন ডক্টৰৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স তেওঁলোকে কৰাব পাৰে তেওঁলোকে পশুৰ জৰিয়তে জীৱ জন্তুৰ তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰিব পাৰে বেংকৰ কাম কৰিব পাৰে CSCৰ জৰিয়তে এইটো এটা হেল্থ গতিকে মই ভাবো যে CSC সকলৰ জৰিয়তে বা DDMৰ আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰাইজৰ মাজত সেই ব্যৱধানটো কমাই দিব লাগে আৰু মানুহৰ মাজত এটা বিশ্বাস মানুহৰ মাজত এটা আত্মবিশ্বাস সাহস এটা তেওঁলোকে দিব পাৰিব লাগে কাৰণ এই সময়ত বহু মানুহৰ মানসিক স্থিতি বহুত বিপৰ্যয় হৈছে কাৰোবাৰ ব্যৱসায়ত বিপৰ্যয় হৈছে কাৰোবাৰ আন জীৱনলৈকে বিপৰ্যয় আহিছে গতিকে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত এটা হেতু হিচাপে সামাজিক হেতু হিচাপে তেওঁলোকে থিয় দিব লাগিব আৰু আমাক তেখেতসকলে এটা আমাক প্লেটফৰ্ম দিব লাগিব আমি তেখেতসকলক লৈ যাতে গৌৰৱ কৰিব পাৰো আমি প্ৰথমেই কৈছো যে এই যিসকলে সাৰ্ভিস দিব এইটো এটা কমপ্লিট স্বেচ্ছাসেৱক ইয়াত কোনো ধৰণৰ আমাৰ দৰমহা বা কোনো ধৰণৰ ইনসেন্টিভৰ ব্যৱস্থা নাথাকে মই পুনৰবাৰ এই কথাটো স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছো আৰু এইটো আপোনালোকে জানি শুনি পেলাই আপোনালোকে ইয়াতে ভলেন্টিয়াৰ হিচাপে কৰিছে আৰু সেইটোই আপোনালোকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মানে মানৱতাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যি পদক্ষেপ এয়া আমাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকক সদায় আদৰ্শ হিচাপে এই কথাটো আমি আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত ভৱিষ্যতে আমাৰ এতিয়া বানপানীৰ কথা আছে আজি যদি এনেকুৱা এটা সিচুৱেশনত যদি কোভিড নিৰ্মূল নোহোৱা পৰ্যন্ত বানপানী ৰিলিফ কেম্প বিলাকত এটা আমাৰ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান থাকিব গতিকে এই বানপানীৰ সময়ত যদি মানুহে দূৰত্ব বজাই নাৰাখে বানপানীৰ সময়ত যদি মানুহৰ এই হাইজিনিটিটো মেইনটেইন নহয় তেতিয়াহ'লে যথেষ্টখিনি অসুবিধা হ'ব আৰু বানপানীৰ আগে আগে এটা যদি আমাৰ ৰিলিফ কেম্পত যদি বহু মানুহে একেলগে থাকিব যায় তেতিয়াহ'লে সোশিয়াল ডিস্টেন্সিং নহ'ব গতিকে জিলা প্ৰশাসনৰ লগত আমাৰ DDMৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগত লগ হৈ আপোনালোকে এতিয়াই এটা পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব যাতে সুচাৰুৰূপে কেনেধৰণে আমি বানপানী আমি শেষ কৰিব পাৰো যদি আমাৰ বানপানী এইবাৰ আহে গতিকে আমি সাজু থাকিব লাগিব প্ৰত্যেকটো সময়ৰ কাৰণে আৰু এটা মই কথা কৈছো যে আমাৰ যিসকল প্ৰতিৰোধী বন্ধুৱে আমাৰ লগত হাতত হাত ধৰি আগবাঢ়ি যাব খুজিব ভৱিষ্যতেও আমি তেওঁলোকক আমি কেতিয়াও নেৰো আৰু আমি এটা পিছলৈকে এটা ডাঙৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে আমি এটা কাম কৰিব পাৰিম বুলি এটা মই দৃঢ়তাৰে আপোনালোকক ক'ব খুজিছো তো এইখিনি কৈ আমাৰ ক'বলগীয়া মানুহ বহুত আছে মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আপোনালোকে যি দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰিছে সেয়া সঁচাকৈ আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ বিষয় এইখিনি কৈ মই বৰ্তমান সামৰিছো দৰকাৰ হ'লে মই পিছত আপোনালোকক আৰু লগ পাম ধন্যবাদ
ধন্যবাদ স্যার। এতিয়া আমি এই যি আমাৰ ভিডিঅ' ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম যিটো চলিছে, ইয়াত অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ লগতে ইউনিচেফ নামৰ সংস্থাৰ বিষয়ে আপোনালোকে এটাই জানে। এটি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা, ইউনাইটেড নেশ্যন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অন্তৰ্গত। তেখেতসকলেও আমাক যথেষ্টখিনি টেকনিকেল হেল্প আগবঢ়াই আহিছে। আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আছে ইউনিচেফৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ফ'কাল পইণ্ট শ্ৰীমতী শ্বেতা পাটনায়ক। চ' তেখেতক মই ইউনিচেফৰ ফালৰ পৰা দুএষাৰমান ক'বৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলোঁ। We have with us Ms. Shweta Patnaik, Emergency Focal Point from UNICEF, Assam. I'd like to request Ms. Patnaik, Madam, to kindly brief us with a message on behalf of UNICEF, Assam. Over to you, Madam. Thank you, Mr. Kripajyoti Majumdar. Honorable Shri Pankaj Chakravarti ji, SPC ASTMA, the entire team from ASTMA and colleagues from UNICEF, and district project officers and field officers from various DDMAs of Assam, and very importantly, the courageous volunteers and Pratiradhi Bandhus. This message is on behalf of our Chief of Field Office, who really wanted to be part of this meeting but couldn't be present at this particular time. And her message is that she wishes to heartily congratulate ASDMA, the department and the leadership of ASDMA on this very innovative and promising initiative, which has brought a response from 16,000 volunteers, one of the largest set of volunteers that we have for a particular state, out of which now the department has shortlisted these chosen 13,000 plus young people. And according to Dr. Madhulika, our chief of UNICEF, she feels that this initiative is a flag bearer for non-pharmaceutical response to the COVID-19 and has enormous value and potential at this juncture to support ASTMA and support the government to reach out to the people of Assam. We always need people and additional hands, especially in an emergency of this kind. And this large number of young people registering has largely encouraged us and has also been a lot of strength for all of us. And on behalf of, because these young people would be speaking to the people of Assam to reach out to them to understand their problems and to also guide them on different government guidelines that are coming out to protect them and safeguard them. You will be also reaching out to speaking to children, young people, women, our seniors, grandparents, and also help them on how to adopt innovative ways to learn and how to play and how to safeguard ourselves, and would become sentinels in many fields of your choice. And as far as UNICEF is concerned, it congratulates ASTMA once again on its leadership for taking the best foot forward, and is very happy to be part of this process and to keep supporting this process with the capacity that we have. Thank you. Over. ধন্যবাদ শ্বেতা পাটনায়ক মেডাম। আপোনালোকৰ সংস্থাটোলৈকে ইউনিচেফলৈকে আমাৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট ধন্যবাদ জনালোঁ। অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে এই আজি যিটো ৱেবিনাৰ হৈ আছে এইটোত টেকনিকেল হেল্প আগবঢ়াৰ বাবে আমি আপোনালোকলৈকে শুভেচ্ছা জনালোঁ। We also express our gratitude towards UNICEF for facilitating, organizing with all your technological help in organizing this webinar. Now I'd like to request Dr. Annapurna Kaul. She is health specialist UNICEF to just
discuss a few basic points on the COVID or coronavirus, COVID-19, and I'd like to request Madam Annapurna to kindly, deliver your, thing in Hindi, because lot of participants are requesting in Hindi, because it would be better for all of them to understand, because few of them are from the rural parts of Assam. So over to you, Madam. वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी को यूनिसेफ की तरफ से अभिनंदन, और मेरी तरफ से भी कि आप लोग आज हमारा ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम हमारा भी ये इट्स एन अपॉर्चुनिटी, हमारे लिए भी अवसर है कि हम आपके साथ इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म से बातचीत कर रहे हैं। आपसे भी ऑब्वियसली अभी जब सेशंस आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ चीज हम आपसे जानेंगे, कुछ चीज हम आपको अपना जितना भी हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी मेरा फर्स्ट सेशन रहेगा, इसमें हम लोग थोड़ा कोविड इन्फेक्शन क्या है और इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं उस पे बातचीत करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो यू कैन कीप ऑन क्लिकिंग, राइट। ओके, तो जैसे आपने अभी बहुत दिनों से क्योंकि हमारे पास मीडिया है, टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर्स है और अदर सोशल मीडिया है, तो हम लोगों को अभी पता है कि अभी हमारे यहाँ पे एक महामारी फैली हुई है जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। तो आपको ये बता दूं कि ये जो महामारी है ये एक विषाणु या छोटा कीटाणु है, उसकी वजह से है। ये जो कीटाणु है ये एक्चुअली जो हम लोग नॉर्मल खांसी बुखार जो हमें रहता है उसी फैमिली को बिलोंग करता है, लेकिन ये नया सदस्य है तो थोड़ा ज्यादा आक्रामक है, थोड़ा ज्यादा मतलब कंटेजियस है, जल्दी इन्फेक्शन फैलाता है। और अभी क्या है कि हमारे विश्व में ये अभी लास्ट 6-7 मंथ से ही है। आपने सबने सुना होगा कि चाइना में पहली बार आया था फर्स्ट केस इसका नवंबर में, तो तब के बाद से अभी तक पूरे विश्व में फैल चुका है। और अभी तक आज जैसे हम लोग आज बात कर रहे हैं तो आज की तारीख में विश्व भर में ऑलमोस्ट 43 लाख पीपल इससे इन्फेक्टेड हैं। और लेकिन एट द सेम टाइम इसका क्या है कि बीमारी जो इन्फेक्शन तो हो जाता है, लेकिन बहुत चीज इसमें ये अच्छा है कि बहुत सारे लोग अच्छे भी हो रहे हैं। तो जैसे विश्व भर में हम लोग देखें तो आज की तारीख में 15 लाख लोग इससे ठीक भी हुए हैं। इन्फेक्शन हुआ लेकिन वो लोग ठीक भी हुए। तो इसी तरह से जैसे हम लोग अपने भारत में देख रहे हैं कि अभी आज की तारीख में आज शायद कुछ लोगों का माइक ऑन है। ओके, थैंक यू। तो जैसे हम लोग भारत में भी देख रहे हैं तो आज की तारीख में ऑलमोस्ट 70,000 लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि आज की तारीख में ऑलमोस्ट हमारे 22,000 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं और बहुत कम प्रतिशत ओनली 3% जो है उनमें डेथ्स हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बीमारी है, महामारी है, पूरे विश्व में फैला है, लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बेशक इसका इलाज नहीं है, बेशक हमारे पास अभी दवाइयां नहीं है, या बेशक हमारे पास कोई इसके अगेंस्ट वैक्सीन नहीं है, टीका नहीं है, बट लेकिन इसके प्रति हम लोग अगर थोड़ा सा मतलब सावधान रहे, अपने आप को इन्फेक्शन से बचाए, और यदि हमें इन्फेक्शन भी हो तब भी अगर हम तुरंत ट्रीटमेंट अपना कराएं तो इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। तो अब किसी भी इन्फेक्शन से बचाव का सबसे पहला हथियार होता है कि हम लोग उस इन्फेक्शन या उस चीज के बारे में जानें। तो जैसे हमें पता है कि ये जो कोविड इन्फेक्शन है तो इसके जो कॉमनेस्ट सिम्टम्स है या जो लक्षण है वो है बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होना। लेकिन अभी कुछ दिनों से हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जैसे हमारे भारत में जैसे जैसे फैल रहा तो हमारे पास और इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि हम लोग देख रहे हैं काफी लोगों में कुछ एटिपिकल सिम्टम्स भी हैं, मतलब उनको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ ना होके कुछ और तरीके से बीमारी के लक्षण आते हैं कि जैसे उसमें
ये एब्डोमेन पेन मतलब पेट का दर्द है, या इवन डायरियल एपिसोड से भी शुरू हो सकता है। तो ये मैं इसलिए हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्योंकि ये बीमारी आजकल फैली है, तो कभी भी अगर हम लोग अगर बीमार हो या हमारे आसपास के संपर्क में जितने भी लोग हैं कोई उनमें से बीमार हो, तो काइंडली उनको तुरंत प्रोत्साहित करें कि वो ट्रीटमेंट अपना जाके स्वास्थ्य केंद्र में दिखाएं। या आजकल जो टेलीमेडिसिन का चला है, मतलब उसमें परमिशन मिला है, तो टेलीकॉनिकली वो लोग कांटेक्ट करें किसी फिजिशियन को या डॉक्टर को, उससे ट्रीटमेंट ले और अपना बीमारी छुपाए नहीं। तो कोई भी सिम्टम हो तो तुरंत आप नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र में तुरंत दिखाएं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये बीमारी फैलती कैसे है। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे बीमारी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है, वैसे वैसे बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन भी फैल रहे हैं। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बीमारी कैसे फैलती है, क्योंकि तभी हम इसके अगेंस्ट प्रिवेंट कर सकते हैं इस बीमारी को, या इसके अगेंस्ट बचाव कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज ये वाला जो स्लाइड है काफी ध्यान से देखिए और काफी ध्यान से समझिए कि जो ये बीमारी है ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से फैलती है। वो पर्सन जो इन्फेक्टेड हो वो जब कभी खांसता है या छींकता है, तो उसके खांसने छींकने से जो भी कण हवा में फैलते हैं वो हमारे नियरेस्ट सरफेस पे फैलेंगे। ठीक है, आपने महसूस किया होगा कि जब हम कभी खांसते छींकते हैं तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से नाक से निकलते हैं। तो यही अगर इन्फेक्टेड पर्सन है वो खांसेगा छींकेगा तो यही ड्रॉपलेट जो है ये हमारे जो नियरेस्ट कोई भी सरफेस होगा, टेबल है, चेयर है या जमीन है, दीवार है, उस पर फैलेगा। ठीक है, तो ये और जब कोई अनइन्फेक्टेड पर्सन उस कंटामिनेटेड सरफेस को छूता है उसके हाथ में ये कीटाणु लग जाते हैं, और यही कीटाणुग्रस्त जो हाथ है, चाहे वो अपने मुंह पे लगाएं या किसी के साथ हैंडशेक करें या किसी और सरफेस को छुए, तो उस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स अगर किसी सरफेस को कंटामिनेट करते हैं और अगर हम उस कंटामिनेटेड सरफेस को छूते हैं तो हमारे हाथ में ये कीटाणु आ जाते हैं, और यही कंटामिनेटेड हाथ से जब हम अपना मुंह, नाक या आंख छूते हैं तो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो ये ओनली मोड ऑफ इन्फेक्शन है। तो हमने अभी काफी दिनों से सुना है कि हवा में फैलता है, तो अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ये हवा में रहता है और फिर ये फैले, लेकिन ये जरूर है कि जब ये किसी सरफेस पे डिपॉजिट होता है, जो कण गिरते हैं छींकने या खांसने से, ये उस सरफेस पे कुछ समय तक रहते हैं। और जब तक, और हमें जैसे हम लोग बाहर जाएं तो हम लोग शॉप्स पे जाते हैं, बसेस में जाते हैं या किसी और गैदरिंग में चले गए, रिलीजियस प्लेस पे चले गए, तो हो सकता है कि वहां कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो, उसको नहीं जानकारी है कि वो इन्फेक्टेड है, वो अनजाने में ही वहां पे है और वो छींक रहा है, खांस रहा है, नॉर्मल प्रक्रिया है शरीर की, तो वो ये कीटाणु भी साथ साथ में डिपॉजिट करते जा रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम लोग बाहर रखें तो कुछ सतर्कता रखें, कुछ प्रिकॉशंस रखें, और इसीलिए हम आजकल बहुत जो प्रमोशन कर रहे हैं हेल्थ इन प्रैक्टिसेस की, कि हम लोग एक दूसरे से दूरी बनाएं, गैदरिंग्स में ना जाएं और फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करें, क्योंकि कॉमनेस्ट मोड जो है, जैसे हमने देखा, हाथ से होता है, हाथ कंटामिनेट होता है, और यही जब हम अपने मुंह, आंख या नाक को छूते हैं तो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। तो इतना हम क्योंकि अब हमें ये जानकारी है तो अब हम अपने आप का बचाव भी इसके प्रति कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं बचाव वाले इस पे जाऊं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कौन से ओके, तो अच्छा आप प्लीज, हाँ, यू जस्ट कीप क्लिकिंग। ओके, तो इससे पहले कि मैं ये स्लाइड के बारे में बात करूं कि प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, सिर्फ ये इतना बता देना चाहती हूँ कि जब ये कण किसी भी सरफेस पे गिरते हैं तो ये कुछ समय तक उस सरफेस पे रहते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ये जानकारी आ रही है, एविडेंस आ रहा है, तो ये जानना जरूरी है कि जैसे हम लोग देखते हैं जो कॉमनली टच सरफेसेस होते हैं, मतलब जो हम कॉमनली दिन भर में छूते हैं, टेबल्स हैं, डोर्स हैं, डोर नॉब्स हैं, पब्लिक में जाएं तो हम लोग शॉप पे जाते हैं तो शॉप का जो रिसेप्शन का टेबल होता है
या चेयर है या रास्ते में जा रहे हैं तो दीवारें हैं, उनको हम लोग यूजली छूते हैं। या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब आगे आगे रिज्यूम होगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम लोग सीट्स छुएंगे। तो इन पे अगर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति ने छींका होगा, खांसा होगा, तो ये कीटाणु रह सकता है। तो जो अभी लार्जेस्ट अवधि है कि कितने दिन तक ये रह सकता है, 5 दिन है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग अपना बचाव करें, और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव बचाव है और जो मतलब बहुत ही इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई खर्चा पानी नहीं है उसमें, वो है फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। तो इसलिए आजकल हम लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग रेगुलरली हैंड वॉश करें, प्रॉपरली करें, साबुन के साथ करें, तो हम लोग इस कीटाणु को अपने शरीर से दूर कर सकते हैं। तो जैसे हमने पीछे स्लाइड में देखा कि हमारे हाथ में ये कीटाणु चिपक जाता है और फिर अपने शरीर में एंट्री पाता है। तो अगर हम लोग हैंड वॉशिंग करें फ्रीक्वेंटली, तो हमारे हाथ पे ये कीटाणु नहीं रहेगा, तो हम अब अपने को बचा सकते हैं इन्फेक्शन से। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि जब भी हम लोग अपना हाथ धोएं तो साबुन से हाथ धोएं, क्योंकि ये जो कीटाणु है वो थोड़ा तेलिया है, मतलब इसका जो सरफेस है वो वैक्सी है, मतलब ऑयली है। तो उसको अपने शरीर से छुड़ाने के लिए साबुन का यूज करना बहुत जरूरी है। और अगर कभी हमारे पास, जैसे हम लोग पब्लिक में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तब हम लोगों को हो सकता है हाथ धोने की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, रास्ते में नहीं है नल वगैरह, तो हम लोग अपने पास सैनिटाइजर्स रखें, जिसमें 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो अवेलेबल है आजकल। तो ये अब हमारे मतलब कुछ समय के लिए हमारा ये बहुत ही एसेंशियल आइटम है कि हम लोगों को अपने साथ रखना पड़ेगा। और जब भी हम कभी अननोन सरफेस छुए तो अपना सैनिटाइजर डेफिनेटली यूज करें। बिकॉज देखिए, कई चीजें होती हैं जो हम लोग थोड़ा सा कॉस्टली है, बट ये हमारे अपने बचाव के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे हम लोग घर पे हैं तो फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करना सबसे चीपेस्ट मेथड अवेलेबल है, और हम सबको प्रमोट करें कि वो लोग फ्रीक्वेंटली अपना हैंड वॉश यूज करें। और दूसरी बात सबसे बढ़िया ये है कि जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, पब्लिक में जाएं, तो कृपया अपना नाक, मुंह और आंख जो है फ्रीक्वेंटली ना छुएं। अगर आप लोग अभी मतलब, क्योंकि आप लोग अभी मेरा सेशन सुन रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि इतनी देर में आपने अपना नाक, मुंह या आंख कितनी बार छुआ होगा। ये नॉर्मल टेंडेंसी है अपने मतलब ये अनकॉन्शियसली हो जाता है, नॉर्मल टेंडेंसी है। लेकिन अब हमें ये चीज कॉन्शियसली अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने हो सकता है कोई सरफेस छुआ हो जिसपे कीटाणु है, तो हम नहीं चाहते कि वो हम कीटाणु अपने शरीर में ले जाएं। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है। और यही एक और वजह है कि अब हम लोग फेशियल मास्क का प्रमोशन कर रहे हैं, मतलब जो अभी आया है गाइडलाइन कि हम लोग को जब हम पब्लिक में जाएं तो फ्रीक्वेंटली मास्क यूज करें, एंड इट इज मैंडेटरी। इसलिए जरूरी है ताकि हम अपना बचाव करें और एट द सेम टाइम हम दूसरों का बचाव करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो अभी फर्स्ट हमने देखा कि हैंड वॉश, पर्सनल हाइजीन। सेकेंड थिंग इज रेस्पिरेटरी हाइजीन। तो रेस्पिरेटरी हाइजीन से हम लोग क्या समझते हैं कि जैसे मैंने बोला कि कॉमनेस्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो छींकता या खांसता है, तो उससे ये कीटाणु हवा में फैलता है, सरफेसेस पे फैलता है। तो अगर हम लोग वो सोर्स ही बंद करते हैं तो डेफिनेटली वायरस को दूसरा होस्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग अभी से, आज से खुद भी फॉलो करें, दूसरे में भी प्रमोट कराएं, और अपने जितने भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन दे कि अभी से जब हम लोग अपना कभी भी खांसते हैं या छींकते हैं तो कृपया करके हम लोग या तो टिश्यू का या हैंकरचीफ का यूज करें छींकने और खांसने में। या अगर ये दोनों चीजें हमारे पास उस समय अवेलेबल नहीं है तो कृपया करके अपनी कोहिनी से अपना नाक और मुंह ढक लें, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। ये देखिए, ऐसे सिंपल प्रोसीजर है। ये आपके अपने लिए जरूरी है या हमारे अपनी सोसाइटी के लिए जरूरी है कि कभी भी हमको छींक आए या खांसी आए तो कृपया उसको टिश्यू से या हैंकरचीफ से ढक ले, या अपनी कोहिनी से ऐसे बिल्कुल बंद करके उसमें छींके, ताकि हम लोग जो ये अभी जो ड्रॉपलेट्स या कण की बात कर रहे थे, ये लोग हम सरफेसेस पे ना डिपॉजिट होने दें।
और जैसे अगर हमने टिश्यू में खांसी किया है तो उसको तुरंत हम लोग डिस्कार्ड कर दें, ठीक है। और जो हैंकरचीफ है उसको आके घर में हमको धोना पड़ेगा। और जैसे हम लोग अक्सर होता है कि हम भी करते हैं, सभी करते हैं कि जो हमारा पल्लू होता है चुन्नी का या अपनी मदर्स का वो यूज करते हैं अपना हाथ मुंह पोंछने के लिए, तो कृपया ये हमको, या गामोछा हम लोग यहाँ पे असम में बहुत कॉमनली यूज होता है, तो कृपया इन सब चीजों का हम लोग ना यूज करें। अगर यूज करें तो कृपया उसको तुरंत धोना पड़ेगा। तो दैट इज वाई हम लोग ये बोल रहे हैं कि हैंकरचीफ का यूज करें, और अगर पॉसिबल है, अवेलेबल है, टिश्यूज यूज करें, क्योंकि वो तुरंत हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात रेस्पिरेटरी हाइजीन में है कि हम लोग पब्लिक में ना थूकें। जैसे हम लोगों की बहुत आदत होती है कि हम लोग रास्ते में चलते फिरते थूकते रहते हैं। ये कॉमन बैड एटिकेट है, लेकिन बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में ऑल अक्रॉस इंडिया। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया है कि अगर कोई पब्लिक में थूकते दिखा तो उसके ऊपर फाइन होगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने जैसे बोला कि ये जैसे हम लोग थूकते हैं तो उसमें कीटाणु होगा, तो दैट मीन्स अगर हम लोग उस चीज को अवॉइड करें, पब्लिक में ना फैलने तो हम डेफिनेटली जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर जो थर्ड चीज मैं बात करना चाह रही हूँ, विच इज अगेन अ प्रिवेंटिव मेजर, है फिजिकल डिस्टेंसिंग। जो हम आजकल सब कर रहे हैं, सुन रहे हैं, 2 गज की दूरी। मतलब एक दूसरे से जब हम लोग बात करें, जैसे हम लोग पब्लिक में जाते हैं, बाहर जाएं, तो कृपया एक दूसरे से कम 1 मीटर या 2 गज की दूरी जो हम लोग सुन रहे हैं, इतना डिस्टेंस बना के रखें। अगेन क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों? तो जैसे मैंने बोला कि हम लोग इन्फेक्ट कैसे होंगे, जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति हम पे खांसेगा या छींकेगा। और जो वायरस है, ये थोड़ा सा मोटा वायरस है, ओबीज वायरस है। मतलब ये 1 मीटर के ज्यादा उड़ के नहीं जा सकता। अगर मैं छींकती हूँ, मेरे इसमें कण है, तो ये ज्यादा दूर 1 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जाएगा। तो अगर हम उतना डिस्टेंस बना के रखेंगे तो हमारे ऊपर ये इन्फेक्शन नहीं आ सकता। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कृपया ये दूरी, जो 1 मीटर डिस्टेंस की बात हो रही है, कभी भी अब हमें अपने व्यवहार में ये लाना पड़ेगा। ये हमारा एक नॉर्मल प्रैक्टिस होना चाहिए कि जब भी हम कभी किसी से बात करें, किसी से मिलने जाएं, या कहीं हम बाहर बाजार जा रहे हैं, तो 1 मीटर डिस्टेंस अपने हर प्राणी से करके रखें। और अगेन हमको पता है कि आजकल अभी हम लोग लॉकडाउन में हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम लोग रिज्यूम होंगे, हम लोगों का थोड़ा नॉर्मलाइजेशन होगा, तब भी बहुत दिनों तक हम लोगों को कुछ चीजें जो अवॉइड करनी, वो ये है कि हम लोग गैदरिंग वाली प्लेसेस को अवॉइड करना पड़ेगा। तो गैदरिंग वाली प्लेसेस क्या है? जैसे रिलीजियस प्लेसेस पे है, जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ आती है एक बार में, जो हम हाट बाजार लगाते हैं, मेलाज होते हैं, या हम लोग थिएटर्स में जाते हैं, या हम लोग मॉल्स में जाते हैं, जहाँ एक बार में बहुत सारे लोग गैदर होते हैं। क्योंकि क्या होता है, जितने ज्यादा लोग एक साथ क्राउडिंग होगी, तो ऑब्वियसली आप वो 1 मीटर डिस्टेंस नहीं रख सकेंगे। तो डेफिनेटली अगर उसमें कोई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी होगा, मतलब उसको नहीं पता है कि वो कोविड इन्फेक्टेड है, वो इन्फेक्शन फैला सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग क्राउडिंग ऑफ स्पेसेस अवॉइड करें। और इसीलिए जैसे हम लोग आजकल बोल भी रहे हैं कि जैसे हम लोग ऑफिस भी ज्वाइन कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो कृपया इतना डिस्टेंस जरूर मेंटेन करके रखें, ताकि हम लोग ये इन्फेक्शन ना फैलने दें। क्योंकि देखिए बहुत जरूरी है कि हमको एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनना बहुत जरूरी है आज की तारीख में, ताकि हम लोग इन्फेक्शन का जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर एक बात आती है कि हम लोग ओके, सो आपने सुना होगा कि हमारे जैसे भारत में अभी आज की तारीख में 70,000 लोगों को कोविड हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम ऑलमोस्ट 30%, आज की तारीख में 32% है, मतलब ऑलमोस्ट 23,000 लोग इस रोग से ठीक भी हुए हैं। एक बहुत स्मॉल परसेंटेज है जिसमें ये बीमारी कुछ ज्यादा सीवियर होती है, और जिसमें कुछ आईसीयू की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये देखने में आया है, जो भी एविडेंस अभी हमारे पास है, उसमें ये देखने में आया है
कि नॉर्मली 85% लोगों में ये बीमारी जैसे कॉमन कोल्ड होता है ना, जैसे जुकाम है, वैसे होके निकल जाएगी। उसमें कोई और सीवियरिटी नहीं होगा, उसको कोई और विशेष देखभाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई विशेष मतलब हॉस्पिटल में किसी और सीवियर ड्रग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ हमारी सोसाइटी में, हमारी पॉपुलेशन में कुछ ऐसा हमारा पॉपुलेशन है जो एट रिस्क है। तो सबसे ज्यादा उसमें एट रिस्क जो है वो हमारे एल्डरली पॉपुलेशन है, सीनियर सिटीजन, मतलब मोर देन 60 इयर्स ऑफ एज के जो लोग हैं, या वो लोग जिनको कोई और बीमारी है और उस बीमारी की वजह से उनका इम्यून सिस्टम वैसे ही डाउन है। तो जैसे लोग हार्ट डिजीज से ग्रस्त हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किडनी डिजीज है, कैंसर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी इम्यून सिस्टम कम है, किसी और दवाई पे वो ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उनमें अगर ये बीमारी हो तो हो सकता है घातक हो सकती है, और उनको हो सकता है कुछ और एडिशनल जरूरतें पड़े हॉस्पिटल में। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपना एल्डरली पॉपुलेशन, सीनियर सिटीजन जो 60 साल के ऊपर हैं, और जो वालनरेबल पॉपुलेशन है जो अदर डिजीज से ग्रस्त है, उनको इस डिजीज से बचाएं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपना बचाव करें, क्योंकि हमारे थ्रू ही फैलेगा। हम लोग तो शायद हो सकता है माइल्डर डिजीज होके ठीक भी हो जाए, लेकिन हमारे थ्रू अगर हमारे Annapurna madam, Dr. Annapurna madam, this is Dr. Kripal Majumdar from ASDMA. Madam, if you can kindly cut short the presentation. Yeah, because of the time constraint. Thank you. ठीक है, तो उनका हमारा करना, बचाव करना बहुत जरूरी है। और फिर लास्ट एक आता है कि फिर फोर्थ हमारे पास क्या, फिफ्थ प्रिवेंटिव मेजर क्या है, जो हमने पहले भी बात किया कि अगर हम में से किसी को भी कोई सिम्टम होता है, बीमारी का लक्षण हो, बुखार हो, खांसी हो, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो, या कोई और डायरिया एपिसोड हो, तो तुरंत हमको नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी पे जाके दिखाना पड़ेगा। हो सकता है वो कोविड हो, उसका तुरंत इलाज हो जाएगा तो सबका बचाव होगा। हो सकता है किसी और वायरल डिजीज भी हो सकती है, तो उसका भी बचाव हो सकता है। तो आई थिंक मेरा ये लास्ट स्लाइड था। Please change the slide. I just need to see. I think this was the last one. Okay, thank you, madam. Thank you so much. ধন্যবাদ বাইদেউ, আপোনাৰ খুব সুন্দৰভাৱে আমাক কোভিডৰ বেছিক কথাখিনি বুজাই দিলে। আমাৰ ASDMAৰ ফালৰ পৰা আপোনালৈ ধন্যবাদ দিলোঁ। লগতে এতিয়া মই জাষ্ট অনুৰোধ কৰিম, আমাৰ লগত আনন্দ কানু আছে। বহুখিনি পাৰ্টিচিপেণ্টে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে বাইদেউৰ কথাখিনি খুব চমুকে 1 মিনিট বা 2 মিনিট সময়ৰ ভিতৰত যদি বুজাই ক'ব পাৰে, বাকী আটাইখিনি পাৰ্টিচিপেণ্ট তাৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ'ব। Over to you, Kanu. Thank you, Kripal da. আপোনালোকে নিশ্চয় গোটেইখিনি বস্তু গম পাইছে আফটাৰ ডিসকাশন। মই জাস্ট বস্তুটোক সামাৰাইজ কৰি দিওঁ এবাৰ। এই প্ৰেজেন্টেশনটোত আপোনালোকে দেখা পালে কিছুমান কথা যেটো আপোনালোকে শুনি আছিলে ইমান দিনৰ পৰা ৰেডিঅ'ৰ মাধ্যমে, টিভিৰ মাধ্যমত আমি গোটেইখিনি ইনফৰমেশন আমাৰ তাত আহি আছে থ্ৰু ভেৰিয়াছ চেনেল। সো বেসিক্যালি মেডামে এটোৱে বুঝাবলৈ ট্ৰাই কৰিলে যে এই ভাইৰাছটো যে কোভিড ভাইৰাছ হিচাপত আমি এতিয়াৰ পৰা কেনেকে পালো, এতিয়া কি পৰিস্থিতিত আছে, ভাইৰাছটো কেনেকে ট্ৰান্সমিট হয়, ভাইৰাছটো কেনেকে ইনফেক্ট কৰে, ভাইৰাছটো কাক বেছিকে ইম্পেক্ট কৰে, এইটো আমি কেনেকে ৰখাব পাৰো, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ আমি কি ল'ব পাৰো, যিখিনি আমি বিভিন্ন মাধ্যমত আমি পাই আছো। যেনেকে হাত ধোৱাটো কিয় প্ৰয়োজন, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটো কিয় প্ৰয়োজন, কিয় আমি 1 মিটাৰ দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগে, এইখিনি কথা মেডামে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলে। এইটো আমাৰ কাৰণে এই কাৰণে প্ৰয়োজন যে আমাৰ মাজত যে আজি আপোনালোকে দেখিছে মোটামুটি 800 জন আমাৰ প্ৰতিৰোধী বন্ধুৱে এইটো মিটিং এটেন্ড কৰি আছে। তো সবে সব বস্তু গম পাব বুলি আমি ধাৰণা কৰিব নোৱাৰো। কিছুমান মানুহে হয়তো বেছি এই বিষয়টোত গৱেষণা কৰিছে, তেখেতলোকে বেছি এই বিষয়টোত বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে, তেওঁলোকৰ তাত বেছি ইনফৰমেশন আছে, বাট কিছুমান মানুহৰ কাৰণে হয়তো বস্তুটো নতুন। তো আমি সবকে এটা লেভেলত আনিবৰ কাৰণে আমি বেছিক কিছুমান তথ্যৰ পৰা আলোচনাটো আৰম্ভ কৰিম। আপোনালোকৰ যদি কিছু প্ৰশ্ন থাকে আমি একদম অন্তিম সেশনত প্ৰশ্নটো এড্ৰেছ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। সো আমি নেক্সট সেশনলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। নেক্সট সেশনটো হ'ল আমাৰ ৰিস্ক কমিউনিকেশনৰ ওপৰত, যে আমি যেটো বিপদ এতিয়া কোভিড ৰূপে আহিছে
এই বিপদটোক মানুহৰ লগত আলোচনাৰ মাধ্যমত মানুহৰ লগত এংগেজ হৈ আমি কেনেকৈ বিপদটোক মোকাবিলা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি দুটা ভাগত বস্তুটো চাম এটা হ'ল আমি কেনেকৈ আমাৰ সমুদায়ত আমাৰ সমাজত থাকি আমি কি কাম কৰিব পাৰোঁ কি মেছেজ দিব পাৰোঁ যেটোৱে কিছুমান বস্তু কিছুমান মাইথ কিছুমান মিছ ইনফৰমেশ্যন কেটাৰ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ লগতে আমি আজি যেটো আমাৰ যেটো সোশ্যাল মিডিয়া চেনেল আছে য'ত আপোনালোকে সবে মোটামুটি জড়িত হয় কিবা এটা কিবা মাধ্যমত এটোক আমি কেনেকৈ বেষ্ট ইউটিলাইজ কৰিব পাৰোঁ সো দ্যাট মানুহৰ তাত আমি একজেক্ট ৰাইট ইনফৰমেশ্যন পুৱাই দিব পাৰোঁ আৰু মিছ ইনফৰমেশ্যন যিকেইটা গৈ আছে ৰিউমাৰ্ছ যিকেইটা গৈ আছে এইকেইটাক আমি কেনেকৈ ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ সুৰেশ পৰমাৰ ভাইক তেখেত আমাৰ ইউনিচেফৰ চিফঅ'ডি অফিচাৰ হয় তেখেতে আমাৰ এইটো সেশন আপোনালোকলৈ লৈ যাব Hello. Yes, Suresh bhai, you are loud and clear. Presentation. Yes, you can start, please. Okay. हिंदी में बोलिएगा बिल्कुल 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 धन्यवाद आनंद और आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन ASDMA के साथ जुड़ने के लिए हम सभी जानते हैं कि ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है विश्व की दुनिया की वो इससे अफेक्टेड है वहाँ ये पहुँच चुका है वायरस तो एज अ सोसाइटी एज अ कम्युनिटी और आप सब लोग एक्टिव तरीके से इस पूरी मुहिम में आप जुड़े हैं आपने आपने अपनी इच्छा दर्शाई है कि आप एज अ वॉलंटियर अपना योगदान देंगे तो क्या योगदान हम दे सकते हैं जहाँ कहीं भी हम लोग रह रहे हैं हमारा टाउन हो सकता है गांव हो सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ इस पूरी चैलेंज में हम कैसे गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे तो एक तो में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका बाकी कम्युनिटी के लोगों पे उनका इन्फ्लुएंस है उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है तो ऐसे लोगों को हम मुहिम में जोड़ सकते हैं जैसे हमारे पंचायत से गांव पंचायत हो या ब्लॉक लेवल पे हो या जिला लेवल पे हो तो पंचायत के जो इलेक्ट किए हुए मेंबर्स हैं उनके साथ हम जुड़ सकते हैं और उनको हम इस पूरी मुहिम में या अगर वो जो काम कर रहे हैं उनमें हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं हमारे वहाँ गांव पूरा वाला जो पूरा कंसेप्ट है विलेज लेवल पे जो लीडर्स हैं उनके साथ जुड़ के हम काम कर सकते हैं दूसरा ये है कि हम जानते हैं कि हमारे वहाँ पूरे आसाम स्टेट में हजारों ऐसे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं आशा वर्कर्स हैं ANM है वो दिन रात काम कर रहे हैं ताकि हम सब लोग सलामत रह सके डोर टू डोर जा रहे हैं 2 दिन 3 दिन पहले एक कम्युनिटी सर्वेलेंस वाला पूरा स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उन पे वो लोग मेहनत कर रहे हैं तो उनको हम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं तो आपके वहाँ लोकल जो फ्रंटलाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़िए और उनको जहाँ जहाँ सपोर्ट की आवश्यकता है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे जैसे इसमें इंफॉर्मेशन जो हमारे पास बहुत सारे सरकार के गाइडलाइंस बाकी सारे जो समुदाय हैं उन तक हम पहुंचा सकते हैं बहुत सारे हमारे लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं
उनके साथ हम जुड़ के काम कर सकते हैं, उनको हम मदद इसमें कर सकते हैं। इस पूरे डिजीज की बात करें, बीमारी की बात करें, तो उसमें जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको एक रिस्क रहता है, तो उनको कैसे हम इससे बचाएं। सबको प्रिकॉशन सबको रखना है, सबको ध्यान रखना है, लेकिन सीनियर सिटीजन को ज्यादा ध्यान रखना है। तो एज अ वॉलंटियर हम कैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि हमारे परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, वो सेफ रहे, उन तक जानकारी पहुंचे। इस पूरी सिचुएशन में जो हमारे बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, और सरकार काफी उसमें ट्राई कर रहे हैं कि जो हमारी सेवाएं हैं, सेवाएं माने जैसे इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन की बात करें, बच्चों को मिलना चाहिए। हमारे जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको जो सर्विसेज मिलनी चाहिए, उनके लिए पूरा मेहनत हो रही है। तो उसमें हम कैसे सपोर्ट करें, हमारे गांव में, हमारे समुदाय में जो बच्चे हैं उनको हम वैक्सीनेशन के लिए कैसे इंश्योर करें। अगर आंगनवाड़ी वर्कर्स या आशा, एएनएम वैक्सीन दे रहे हैं, तो वहाँ उनको हेल्प करके क्या हम फिजिकल डिस्टेंसिंग और बाकी सब चीज़ों में क्या हम मदद कर सकते हैं। लोकल कोऑर्डिनेशन का बात हुआ कि जो ग्रुप्स हैं विलेज लेवल पे, उनके साथ जुड़ के काम करें। एक जो काम हम कर सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग हेल्पलाइन है, जैसे चाइल्ड लाइन है, तो बच्चों को अगर कोई इश्यू है तो चाइल्ड लाइन का नंबर है। एनएचएम है, एएसडीएम है, उन्होंने अपना अपना हेल्पलाइन दे रखा है। तो वैसे जो हेल्पलाइन है जहां आपके कुछ इश्यूज हैं तो फोन कर सकते हैं, सर्विसेज रिलेटेड है, कंप्लेन है, तो वो आप उसको एक लिस्ट बना के आप व्हाट्सएप ग्रुप में या जो हमारा समुदाय है उसमें आप पॉपुलराइज कर सकते हैं, लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे, वो काफी अहम है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, हम बहुत सारे मीडिया में अलग अलग जगह पे ये सुनते हैं कि भेदभाव हो रहा है लोगों को लेके। एक एक भेदभाव की खबरें जो आ रही हैं हमारे स्टेट से बहुत कम है, लेकिन बाकी जगह से जो हमारे हेल्थ के लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, जो इस पूरी लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं, वो जहाँ रहते हैं उनके खिलाफ भेदभाव होता है। दूसरा सुनने में आया है कि अब बहुत सारे हमारे जो माइग्रेंट्स भाई बहन है, वर्कर्स हैं, जो अलग अलग स्टेट में काम कर रहे हैं, उनको वापस लाने के लिए स्टेट तैयारी कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग आ भी रहे हैं। तो वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, वो बहुत जरूरी है। सतर्क रहना जरूरी है। डॉक्टर अन्नपूर्णा ने काफी सारी बातें बताई, वो सारी प्रिकॉशन सारा लेना है, लेकिन किसी को भी स्टिग्मेटाइज ना हो, डिस्क्रिमिनेट ना हो, वो देखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि वो हमारी जो पूरी, अगर हम किसी एक समुदाय के प्रति भेदभाव करते हैं तो हमारी जो पूरी लड़ाई है उसको वो कमजोर करते हैं। लोगों में फिर ज्यादा फियर आ जाता है कि भाई क्या होगा मेरे साथ, क्या बर्ताव करेंगे कम्युनिटी के लोग, और वो फिर सामने नहीं आते हैं। और वो फियर की वजह से अगर सामने नहीं आते हैं, बताते नहीं है, तो और ज्यादा लोगों तक ये बीमारी फैल सकती है। तो क्योंकि ये नया एक डिजीज है, सब लोग इस पड़कार और चैलेंज के सामने लड़ रहे हैं, तो एक फियर वाला भी इसमें एलिमेंट है। तो लोगों तक सही जानकारी और किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसमें एज अ वॉलंटियर हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो अगर हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं, स्टिग्मा करते हैं, तो उसका क्या बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है। एक तो लोग खुल के सामने नहीं आएंगे कि उनको लगेगा कि भाई मेरा जो गांव के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, पता नहीं मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, तो वो छुपाते हैं। तो अगर उनको ये भरोसा है कि मेरे साथ बिल्कुल भेदभाव नहीं होगा, मेरे जो परिवार के लोग हैं उनके साथ नहीं होगा, तो वो सामने भी आएंगे, प्रिकॉशंस भी लेंगे, और इस पूरी लड़ाई को हम अच्छे से लड़ सकते हैं। वो हेल्प के लिए आगे नहीं आएंगे।
जैसे हेल्थ की सर्विसेज की हेल्प की जरूरत है, बाकी सब चीजों की हेल्प की जरूरत है, तो वो अगर फियर है तो वो सामने नहीं आएंगे। जो बाकी हेल्दी बिहेवियर है, क्योंकि वो बताएंगे नहीं तो वो हेल्दी बिहेवियर को एडॉप्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं, वो एक फिर सवाल बन जाता है। तो जितना हो सके हम इसको समाज में ये एक संदेशा पहुंचाना है कि ये एक बीमारी ऐसी है जो किसी को भी हो सकती है, और अगर कोई कोविड-19 का इन्फेक्शन है या पॉजिटिव है तो वो जरूरी नहीं है कि किसी और को नहीं हो सकता। किसी को भी ये वायरस का इन्फेक्शन है, किसी को भी हो सकता है। 100% प्रिकॉशन ध्यान रखना है, लेकिन बिल्कुल भेदभाव नहीं करना है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो इसमें एक लास्ट सेशन है, तो उसमें और एएसडीएमए के टीम और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे अगर बात करें तो ये जागरूकता फैलाने के लिए आप बहुत अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। सही संदेश लोगों तक पहुंचाना, ये आज की तारीख में बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है इस बीमारी को लेके। तो आप खुद समझिए, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अपने पास, सही जानकारी रखिए, और फिर वो सही जानकारी जो है लोगों तक पहुंचाइए। कहीं अगर गलत जानकारी है, फेक न्यूज है, तो उसको लोगों को बोलिए कि उसको ज्यादा फॉरवर्ड ना करे, लोगों तक पहुंचाए नहीं, वो हम कर सकते हैं। सरकार की जो अलग अलग टाइम पे गाइडलाइन आ रही है, एडवाइजरी है, वो लोगों तक पहुंचाइए। लोगों को सेंसिटाइज करिए, पॉजिटिव जो न्यूज है उनको ज्यादा बताइए। आजकल हर जगह पे हम नंबर्स देखते हैं कि इस देश में इतने नंबर्स हो गए, हमारे देश में इतने, इस स्टेट में इतने नंबर हो गए, तो उसके कारण एक स्ट्रेस भी बढ़ता है परिवार में भी, लोगों में भी। तो पॉजिटिव चीजों को ज्यादा शेयर करिए व्हाट्सएप के थ्रू। बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, जो जिन्होंने पूरा ऐसे स्टोरीज आते हैं कि वो अच्छे होके अपने घर वापस गए हैं। तो ऐसे पॉजिटिव जितने भी न्यूज हैं, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके बहुत सारे स्टोरीज आ रहे हैं। तो ये सारे पॉजिटिव जो स्टोरी है, जितना हो सके उतना आप लोगों तक पहुंचाइए, ताकि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर का निर्माण हो। ये बात कर चुके हैं कि रिलीजियस लीडर्स, गाँव बुरा हो, इन सब के साथ जुड़ के हम काम कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लोगों को सेंसिटाइज करना, जो ऐसे वनरेबल हमारे जो समुदाय है वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, सर्विसेज पहुंचाने में मदद करना। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां हम अपना कंट्रीब्यूशन योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो ये ऑलरेडी हमने बात की है कि कौन ऐसे हमारे लोग हैं जो रिस्क में है, तो उनका विशेष ध्यान हमें देना है। नेक्स्ट प्लीज। ये एक उदाहरण देके, एक एग्जांपल देके चीज को समझने के लिए कि हमें एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। हम जैसे मैं बता रहा था कि बहुत ज्यादा हमारे जो लोग हैं जो बाहर काम करते हैं, वो धीरे धीरे शायद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। तो कैसे हम उनका सहयोग कर सकते हैं? उनको पहले तो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से सेल्फ क्वारंटाइन करना पड़ेगा, फिर वो अपने परिवार के पास आएगा। तो वहां पे भी उनके परिवार को कैसे हम इमोशनल सपोर्ट जो है, बात करके, काउंसलिंग करके कैसे सपोर्ट दे सकते हैं एज अ वॉलंटियर। और जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, ताकि जितने भी ऐसे लोग वापस आ रहे हैं अपने अपने गांव में, अपने 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 ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, उनके लिए एक अच्छा वातावरण का निर्माण करें, और वो भी सहयोग दें और हम भी सहयोग दें, ताकि हम इस पूरी जो एक चैलेंज या पड़कार है उसका हम सामना कर सकें। आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड। थैंक यू। থেংক ইউ সুৰেশ ভাই। মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা গম পাইছে। তেখেতে এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছিলে যে আজিৰ ডেটত যিহেতু আমি বিভিন্ন চ'ৰ্চৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন পাই থাকোঁ, গাঁও হওক বা চহৰে হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ মিছ ইনফৰমেশ্যন, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰিজুডিচ, বিভিন্ন ধৰণৰ আমি দেখিছোঁ মানে
ব্যৱহাৰজনিত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আমি দেখা পাইছো। কিছুমান মানুহে ঘৃণা কৰে, কিছুমান মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱধান সৃষ্টি হৈছে বিকজ অফ অনলি মিছ ইনফৰমেশ্যন। চ' আমি যিহেতু মানে আমি আগবাঢ়ি আহিছো সমাজত নেতৃত্ব দিবৰ কাৰণে, আমি আগবাঢ়ি আহিছো এইটো ভাবিবৰ কাৰণে যে কাক সহায়তাৰ প্ৰয়োজন, তাক আমি কেনেকে সহায়তা দিব পাৰো। আমাৰ সহায়তাৰ এটা দিশ হ'ল আমি মানুহক সঠিক তথ্য দি পেলাইও কিন্তু বহুত ডাঙৰ সহায়তা কৰিব পাৰো। এইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে তেখেতে, কেনেকে আমি সঠিক তথ্য যাচাই কৰিব লাগে, কেনেকে সঠিক তথ্যটো আমি বিলি কৰিব লাগে, আমি এইখিনিৰ ওপৰত কেনেকে কাম কৰো এইটোৰ ওপৰত তেখেত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। ধন্যবাদ সুৰেশ ভাই। আমি এতিয়া আমাৰ নেক্সট সেশনলৈ যাম। নেক্সট সেশনটোত আমি বেসিক্যালি ট্রাই কৰিম আমাৰ আজিৰ ডেটত যিটো সোশ্যাল মিডিয়াৰ দিনত আমি কেনেকে সোশ্যাল মিডিয়াটো কেনেকে আমি সদুপয়োগ কৰিব পাৰো, মানুহৰ তাত আমাৰ কিছুমান তথ্য বিলি কৰিবৰ কাৰণে। তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছো আমাৰ C4D আমাৰ কমিউনিকেশ্যন স্পেশালিষ্ট মিস পূৰ্বী মলহোত্ৰা, তেখেতে এইটো সেশন আমাৰ লগত আলোচনা কৰিব। Thank you, Anand. Good afternoon, everyone, and welcome. मेरा जो सेशन है बेसिकली कम्युनिकेशन के ऊपर है कि किस तरह से आप वॉलंटियर्स जो कम्युनिटी में जा रहे हैं, किस तरह से आप ज़्यादातर लोगों का अवेयरनेस लेवल बढ़ा पाए। तो मेरी प्रेजेंटेशन दो भागों में डिवाइडेड है। एक कि आपको कौन से सोर्सेस से सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं अभी बहुत सारे चैट कमेंट्स पढ़ रही थी और बहुत सारे मुद्दे उठ के आ रहे हैं कि कहाँ हम कैसे बता पाएं कि कौन सा इंफॉर्मेशन फेक है या कौन सा इंफॉर्मेशन करेक्ट है। तो could you move to the next slide? So पहला स्टेप ये है कि आपको किन मुद्दों पे बात करनी है लोगों से, क्योंकि आप कम्युनिटी में जाएंगे, लोगों से फिजिकल डिस्टेंसिंग के ऊपर बात करेंगे, हैंड हाइजीन के ऊपर बात करेंगे। जो इश्यूज मेरे कॉलीग सुरेश और डॉक्टर अन्नपूर्णा ने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, मैं फिर से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी उनको फिर से बताने के लिए। पर आपका बेसिक रोल मेरी जितनी समझ है उतना है कि आप रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो लोगों का फियर या कोई एरिया ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन हो, कोई कम्युनिटी की तरफ स्टिग्मा हो, या जिस जनरल कोई अवेयरनेस के लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत हो, आप बेसिक रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे फ्रंट में जो उनको ये वाली सारी इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपको ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। ऑलरेडी टीवी पे, न्यूज़पेपर में, रेडियो पे आप बहुत कुछ सुन रहे हैं ऑलरेडी। देयर आर आल्सो दीज सोर्सेज जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है और फ्रीली अवेलेबल है, जो आप कभी भी जाके उनमें से इंफॉर्मेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं और डिसेमिनेट कर सकते हैं। अगला स्लाइड प्लीज। अगर आप देखें यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम दिया है। एक तो ASDMA है, उनका फेसबुक और ट्विटर चैनल्स अगर आप खुद फॉलो करें तो आपको अपडेट्स डेली बेसिस पे मिलेंगी कि कौन सी एडवाइजरीज आई है, कौन सी गाइडलाइंस आई है, क्या इंफॉर्मेशन नया है जो आपकी बेहतरी के लिए अच्छा हो। क्योंकि अगर आप जब कम्युनिटी में जाएं और अगर कोई प्रश्न उठे तो आपके पास उसका उत्तर हो। प्लस यूनिसेफ की अगर आप वेबसाइट देखें या आप उसके सोशल मीडिया चैनल्स देखें, WHO का देखें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का देखें, NHF असम का देखें, तो उसमें हर रोज एटलीस्ट 3 या 4 इंफॉर्मेशन अपडेट्स आते हैं, which also include information on fake news. अगर आप एक और साइट है PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उनका तो नॉर्थ ईस्ट में पूरा का पूरा जोन में काफी प्रभाव है और वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहे हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है और कौन सी इंफॉर्मेशन जो मीडिया में आ रही है वो गलत है। तो मैंने एक प्रश्न देखा था चैट बॉक्स में कि हम कैसे पता कर पाएं कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है।
तो ये वाले सोर्सेज आप देख सकते हैं और आप एक्सेस कर सकते हैं कि जहाँ पे सही इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए। दूसरा एक और मीडियम है जो यूनिसेफ सपोर्ट करता है, वो है यू रिपोर्ट इंडिया, क्योंकि आप लोग इट्स बेसिकली फॉर यंग पीपल और ये अवेलेबल है दोनों व्हाट्सएप और फेसबुक पे। आप नीचे इस स्लाइड पे देखें, अगर आप यू रिपोर्ट इंडिया को सर्च करें या ये वाला नंबर व्हाट्सएप पे सेव करके कोरोना या कोरोना या यू रिपोर्ट कुछ भी ऐसा लिखें तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन कोरोना वायरस के ऊपर मिल पाएगी। प्लस सिंस आप वॉलंटियर्स हैं और आप कम्युनिटी के साथ भी बात करेंगे इसके बारे में, तो इसमें एक क्विज भी है जिसको आप लेकर टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कोविड के बारे में कितनी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो जब आप इन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो आपके बेसिक मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है या आपका रोल क्या है उस इंफॉर्मेशन को लेकर आपको करना क्या है। पहला तो जितना मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग, और प्लीज आनंद बीच में आ जाए अगर इफ आई गो लिटिल, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एक टेलीफोन चेक-इन्स है इन टर्म्स ऑफ चेक-इन्स फॉर एल्डरली, और जो सुरेश ने बोला जो वल्नरेबल कम्युनिटीज है या वल्नरेबल पॉपुलेशंस है, एल्डरली लोग, मदर्स, प्रेग्नेंट मदर्स, चिल्ड्रन, अगर इनके कोई मुद्दे हो तो ये टेलीफोन चेकिंग्स के थ्रू आप उनको इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, उनको हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में भी बता सकते हैं, और जो भी सुविधाएं हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के थ्रू उनको मिल रही है उनके बारे में भी आप बता सकते हैं। जब आप कम्युनिटी के अंदर जाएं तो आपका बहुत बड़ा एक रोल है कि आप पब्लिक प्लेसेस में मॉनिटर करें कि फिजिकल डिस्टेंसिंग हो रही है कि नहीं। अगर कोई जहाँ पे सब्जी तरकारी मिलती है या कहीं पे राशन का सामान मिलता है वहाँ पे हर वक्त आपको लोग ज्यादा नजर आएंगे। इन जगहों पे बहुत बहुत जरूरी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कर पाए और इंफॉर्मेशन दे पाए लोगों को कि क्यों उनको ये करना है, जरूरी है। इन पर्सन सपोर्ट ऑफ कोर्स, जैसे सुरेश ने बताया कि आप अगर इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर रहे हैं, फेथ लीडर्स हैं या कोई पंचायत से है, तो उनको कौन सी इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है, किस तरह से उनके साथ सपोर्ट करके लोगों को प्रभावित करना है, घर के अंदर रहना, क्या सेफ्टी मेजर्स लेना है, हाथ धोना है, मास्क पहनना है, एक्सेट्रा। एक और बहुत इम्पोर्टेंट रोल मेरे हिसाब से वॉलंटियर्स का है कि जो चीजें ग्राउंड लेवल पे हो रही हैं या नहीं हो रही हैं उनको रिपोर्ट बैक करना एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। वंस अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है कि कोविड वायरस कैसे फैलता है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी होती है, क्या गाइडलाइंस है, एडवाइजरीज है गवर्नमेंट की, तो आप बहुत आसानी से पब्लिक स्पेसेस में या कम्युनिटी में पता कर पाएंगे कि क्या सही है या क्या गलत है। अनदर थिंग जो सुरेश ने बोला स्टिग्मा के ऊपर, भेदभाव के ऊपर, अगर आपको लगता है कि कोई कम्युनिटीज भेदभाव कर रही है या किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट या फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स के अगेंस्ट, ये वाली चीजें आपको रिपोर्ट बैक करनी चाहिए सो दैट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले पाए उसके ऊपर, एड्रेस कर पाए उन मुद्दों पर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So once you have accessed जो इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी एक्सेस हो चुकी है या आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी है, तो किस तरह से कौन से मीडियम्स आप यूज कर सकते हैं ज्यादा पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। एक डिजिटल, बिकॉज अभी लॉकडाउन के समय पे सबसे ज्यादा जो चैनल्स चले हैं वो है ट्विटर, वो है सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीविजन और रेडियो तो ऑफ कोर्स उनका खुद का बहुत ज्यादा रीच है। दूसरा, क्योंकि आप कम्युनिटी लेवल पे काम करेंगे तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे आते हैं।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन जगहों पे पोस्टर्स, आईसी मटेरियल यूज करें जो हेल्पलाइन नंबर्स एंड इंफॉर्मेशन डेफिनेटली दे लोगों को। व्हाट्सएप एक मीडियम है जो जहाँ पर सही न्यूज और फेक न्यूज दोनों मिल रही है, वो हम सबको पता है। पर आप वॉलंटियर्स वो रोल निभाते हैं जहाँ पे आप रिकग्नाइज कर पाएंगे या आप लोगों को बता पाएंगे कि क्या गलत है या क्या सही है। और आप इन दोनों में भेदभाव कैसे कर पाएंगे? अगर आप राइट सोर्सेज पे जाएं, राइट इंफॉर्मेशन को एक्सेस करें और राइट इंफॉर्मेशन लोगों को पास ऑन करें। इंटरपर्सनल शेयरिंग तो ऑलरेडी बात हो चुकी है, जो आप कम्युनिटी लेवल पे लोगों के साथ बात करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगर हम मैं बात कर रही थी बहुत क्विकली डिजिटल के बारे में कि हम किस तरह से जाके डिजिटल मीडियम्स पे इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ हैंडल्स है ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप पे जो आप फॉलो कर सकते हैं और आपको डेली अपडेट्स मिल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप खुद एक्टिव हैं इन डिजिटल मीडियम्स में तो आप प्लीज ये इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करें और उनको उसको स्प्रेड करें दोनों सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप के थ्रू। और आई एम श्योर सबके बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे जहाँ पे दोस्त हैं, पीयर्स हैं, फैमिली है या काम करने वाले लोग हैं। प्लीज ये वाले मीडियम यूज करिए सो दैट द इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन एज मच एज पॉसिबल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब हम आपके जो एक्शंस, जो आपका रोल है कम्युनिटी लेवल पे, किस तरह से आप लोगों को उस चीज के बारे में जागरूक करेंगे या लोगों को बताएंगे कोविड के बारे में कि आपका क्या रोल है। इसके लिए कुछ मीडियम्स हमने लिस्ट करे हैं। वन ऑफ द वेज इज फोटोग्राफ्स। सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये होता है अगर आप फोटोग्राफ्स लें या फॉर इंस्टेंस अगर आप कम्युनिटी में जाके सोशल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंसिंग का इंश्योर कर रहे हैं, तो अगर आप उसकी फोटो लेके ASDMA को टैग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो उसकी रीच नेशनल लेवल पे हो जाती है। बहुत लोग स्टेट लेवल पे, पॉलिटिकल लीडरशिप, मीडिया, बहुत लोग देखते हैं उनके चैनल्स। तो इट इज अ वेरी गुड मैकेनिज्म कि आप शो करें कि आप क्या एक्शंस ऑन ग्राउंड ले रहे हैं। बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोगों की फोटो लें या एक्शंस की फोटो लें और सेल्फीज ना लें। दूसरा, वीडियोस बहुत चल रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, आप खुद देख रहे होंगे बहुत सारे वीडियोस जो इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आप खुद इन वीडियोस में फीचर कर सकते हैं, आप अपने खुद की वीडियोस बना सकते हैं जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो लोगों को और उसको सोशल मीडिया पे स्प्रेड या पोस्ट करें। दूसरा, सोशल मीडिया पे आप लाइव जा सकते हैं और लोगों को बाकी लोगों को दिखा सकते हैं कि आप एक्शंस क्या ले रहे हैं ऑन ग्राउंड, जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग इन पब्लिक प्लेसेस, एक्शंस दैट आर बीइंग टेकन टू सपोर्ट कम्युनिटी मेंबर्स या एल्डरली या प्रेग्नेंट वुमेन, जैसे सुरेश ने बताया। हमारे हेल्थ वर्कर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर उनके वीडियोस या उनके बारे में अगर आप पोस्ट करें तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट या होप या पॉजिटिविटी आती है। ऑफ कोर्स हैंड वॉशिंग तो सबको पता ही है। तीसरी बात जो सुरेश ने थोड़ा सा टच अपॉन किया था कि स्टिग्मा के बारे में, व्हाट्सएप बहुत यूज किया जा रहा है फेक न्यूज के लिए या मिस इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको लगता है कि कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड या कोई कॉलीग ये इंफॉर्मेशन जो गलत है वो स्प्रेड करे, प्लीज रीच आउट टू देम एंड टेल देम ये इंफॉर्मेशन गलत है और इट शुड नॉट बी स्प्रेड। नेक्स्ट प्लीज। ये थोड़ा सा आईसी मटेरियल है जो हमने डेवलप किया है ASDMA के साथ ही, और यूनिसेफ का भी कुछ मटेरियल है जो मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में है या किस तरह से हैंड वॉशिंग करते हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन या आईसी मटेरियल अवेलेबल है और हम आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई हमें बताए या जरूरत पड़े तो हम डेफिनेटली इसको ईमेल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।
Next slide, please. बस मेरी ये लास्ट स्लाइड है. These are just important reminders कि आप जब कम्युनिटी के साथ इंटरैक्ट करें तो प्लीज अपनी हेल्थ सबसे पहले देखें. ये वायरस ऑफ कोर्स किसी को भी हो सकता है, कोई भेदभाव नहीं है उसमें. सेफ्टी फर्स्ट. ऑनलाइन इंटरैक्शन के बारे में जब हम बात करें, अगर आपको लगता है कि कोई आपको ट्रोल कर रहा है या अग्रेसिव हो रहा है, प्लीज रिपोर्ट इट और ब्लॉक द पर्सन. अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन का उत्तर नहीं है या क्वेश्चन का उत्तर नहीं है, प्लीज से नो. और आपके पास सोर्सेज हमने जो आपको दिए हैं, प्लीज गो बैक टू दैट और उनके एंड प्लीज गेट द राइट आंसर फॉर इट ऑल्सो. अगर जैसे जिस तरह से हमने स्टिग्मा के बारे में बात करी, अगर कुछ आपको लगता है कि गलत हो रहा है कम्युनिटी लेवल पे, प्लीज उसको रिपोर्ट बैक करिएगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आई थिंक दिस वाज द लास्ट वन. यस, थैंक यू. और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो हम डेफिनेटली सेशन के एंड में हम बात कर सकते हैं. थैंक यू. थैंक ইউ পূৰ্বী. মই সামাৰাইজ কৰোঁতে এইখিনি কথা তেখেতে যিটো ক'লে যে আমাৰ হাতত আজিৰ ডেটত যথেষ্টখিনি পাৱাৰ আছে থ্ৰু দ্য ইউজ অফ ছ'চিয়েল মিডিয়া. আমাক জাষ্ট এইটো বস্তু বুজিব লাগিব যে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াটো কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ. তেখেতে কোৱা গোটেইখিনি কথাৰ মাজত এটা কথা মই চবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো মই ধাৰণাটো পাইছোঁ, আমাৰ সমাজত আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে বহুতখিনি ভাল কামো হৈ আছে. আমি এইটো দেখা পাইছোঁ যে বেয়া বস্তুবোৰ ফটককৈ শ্বেয়াৰ হৈ যায়, কিন্তু ভাল বস্তুবোৰ ফটককৈ আমি এটেনশ্যন নাপাওঁ বা ভাল বস্তুবিলাক ফটককৈ মানুহৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নহয়. চ' আপোনালোকৰ এটা ডাঙৰ ৰোল হ'ব যদি ক'তবা আপোনালোকে দেখা পাইছে যে কিবা ভাল বস্তু হৈ আছে, ধৰক কোনোবা দোকানত ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং ভালকৈ মেইনটেইন হৈ আছে বা ক'ত কিবা গাঁৱৰ মাজত কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে যিটো ক'ভিডৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহুত ভাল বুলি আপোনালোকে বিবেচনা কৰে, সেই মুহূৰ্তটোৰ ফটো এটা কেপচাৰ কৰি পেলাই ASDM-ক টেগ কৰি যদি আপোনালোকে ফেচবুকত বা টুইটাৰত এইটো বস্তু টুইট কৰে, তেতিয়া বস্তুটো ৱাইডাৰ চাৰ্কুলেশ্যন হয়, বহুতখিনি মানুহৰ তাত গৈ পায়. তেতিয়া বস্তুটো কি হ'ব, এটা প্ৰেক্টিচ এটা পাৰ্টিকুলাৰ জেগাৰ পৰা বেলেগ বেলেগ জেগালৈ ট্ৰান্সফাৰ হয় আইডিয়াটো. এইখিনিতে মই শেষ কৰি মই অনুৰোধ জনাম আমাৰ ষ্টেট প্ৰজেক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ ছাৰ পংকজ ছাৰে, তেখেতে আপোনালোকৰ কেইটামান কুৱেৰিক ৰেছপণ্ড কৰিব, তাৰপিছত আমি নেক্সট ছেশ্যনত যাম. প্ৰতিৰোধী বন্ধুসকল, মই খুব ছুটিকে দুটামান আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম. আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন কিছু দেখিছোঁ. প্ৰথম কথা হ'ল যে প্ৰতিৰোধী বন্ধুসকলে সুধিছে যে আমাৰ যদি কোনো ধৰণৰ ইনফেকশ্যন হয় বা কোনো ধৰণৰ যদি এই অসুখ হয়, তো এনেকুৱা ধৰণত কি ধৰণৰ প্ৰটেকশ্যন আছে. প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি প্ৰতিৰোধী বন্ধুসকলক সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে তেখেতসকল নন মেডিকেল যিবিলাক আমাৰ ইনিচিয়েটিভ থাকিব জিলা প্ৰশাসনৰ লগত, সেই ইনিচিয়েটিভবিলাকতে থাকিব. আৰু দ্বিতীয় কথা, তেওঁলোকে জিলা প্ৰশাসন বা DDM-এ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিৰ লগত তেওঁলোকে লগ হৈ পেলাই কামবিলাক কৰিব. আৰু আমি তেখেতসকলক ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানেই যে কি ধৰণৰ সাৱধানতা ল'ব লাগে, দূৰত থাকিব লাগে. এই সাৱধানতাখিনি আপোনালোকে অৱলম্বন কৰিব লাগিব. আৰু আপোনালোকে ৰাইজৰ সমাগমত যোৱাৰ কোনো কথা নাথাকে. আপোনালোকে ৰাইজৰ পৰা সদায় দূৰত থাকিব. আপোনালোকে পাৰ্চন টু পাৰ্চন, নিজৰ গোটেই সমাজখনৰ কথা নহয়, আপোনাৰ নিজৰ ওচৰৰ মানুহখিনি আপোনালোকে প্ৰথম সজাগ কৰক. আপুনি 5জন মানুহক সজাগ কৰক, সেই 5জনে আকৌ 10জনক কৰিব. তেনেকে আমি প্ৰথম অৱস্থাত আমি আগবাঢ়ি যাম. আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল যে আপোনালোকৰ এজনে লিখিছে যে আমাৰ কিবা ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকিব নেকি. আমি আজি সংগঠিত হোৱা প্ৰতিৰোধী বন্ধু সংগঠিত হোৱা আমাৰ বেছি দিন হোৱা নাই. আমি এই গোটেই কথাবিলাক ভৱিষ্যতে আমি কি কি সুবিধা আমি ল'ব পাৰোঁ বা আমি কি কি সুবিধা আপোনালোকক দিব পাৰোঁ, নিশ্চয় আমাৰ দৃষ্টিত থাকিব. আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমি যদি সঠিক পথেৰে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, আপোনালোক যদি আদৰ্শ হিচাপে যেতিয়া আমাৰ সন্মুখত আহিব, তেতিয়া আমি আপোনালোকক ডেফিনেটলি আমাৰ চৰকাৰৰ যিখিনি সা সুবিধা বাকী থাকিব, সেই সুবিধা